Hey everyone, welcome to my channel. Today I will discuss what are the opportunity for you after completing your MSc in chemistry. Okay, so first is you can go for research field. After MSc you can go for research and complete PhD, as it will bring stability to your career by adding a new dimension to your knowledge. So you can go in research field after if you qualified CSI NET exam. Then you can go in IITs in Bangalore or other reputed university. But you can also pursue your PhD in private university, and after that your career is also stabilized. Okay, next one is after qualifying NET plus PhD, you can apply for the post of assistant professor post in various government colleges and government university, and they will give you a good salary and with good peace of mind. Okay, third option है after MSc you can clear B.Ed exam to get a job of a teacher in +2 class. Yes, after MSc you can go for B.Ed and you can give your test in B.Ed exam. Then you will be a lecturer in 12th class. Okay. Fourth one is you can also opt for a private coaching institute. Yes, you can apply for a private coaching institute, and you can also open your own coaching institute, or you can go for in private coaching institute for your as a teacher. Next one is opportunity in industry. So after MSc, I think a very vast increment in industry to work in PSU like IOCL, BPCL, HPCL, ONGS, Power Corporation of India Limited. You have to clear GATE exam because it demands valid GATE score. So after MSc you can apply for GATE also. There are two tests like after MSc, NET and GATE. You can apply for NET and GATE. GATE will be a open gate for you in industries like IOCL and BPCL, HPCL, ONGS, and they also provided a good package of salary. Next one is without qualifying, you will not qualify your CSI NET or GATE. So is there any opportunity after that? So yes, there's a huge demand of chemists in various industries like paint, cement, agriculture, seeds and pesticide, food industries, sanitation industry, ceramic, paper, plastic and isomer industries, textile industry, forensic science. As a trainee you can apply for job in that type of industry. There are various posts like quality inspector, examiner, production officer, lab chemist, lab assistant. In private field you can apply for job. Okay, then now I will discuss some other opportunity for you in a series like analytic chemist. Second one you can apply for teacher. Third you can apply for lab chemist. Fourth you can apply for production chemist. Fifth research and development manager. ये जो पोस्ट है ये पोस्ट निकलती है, आप सरकारी रिजल्ट पे चेक करते रहो. साइट है सरकारी रिजल्ट पे, वहाँ पे जो MSc केमिस्ट्री है उनकी जो इंडस्ट्रीज़ में जो जॉब निकलती है वो भी मिलती है आपको, या फिर अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में जहाँ पे डिमांड होती है लैब केमिस्ट की, तो वो MSc केमिस्ट्री के जो बच्चे हैं ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है उनको किसी ना किसी में फील्ड में जॉब वहाँ पे मिलती ही है. ठीक है, वहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो MSc केमिस्ट्री ही मांगी जाती है. और नेक्स्ट वन है केमिकल इंजीनियर एसोसिएट, बायोमेडिकल केमिस्ट, इंडस्ट्रियल रिसर्च साइंटिस्ट, मटेरियल टेक्नोलॉजिस्ट, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन ऑफिसर, सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट स्पेशलिस्ट. ओके, नेक्स्ट वन है एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, टॉयलेटरी इंडस्ट्री, प्लास्टिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. तो ये जो लिस्ट ऑफ है जो आपकी अपॉर्चुनिटी है, आपको ये PPT है, ये आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगी अगर PPT शेयर हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो आप लोग ये जो अपनी अपॉर्चुनिटी है इनको देखते रहें और होप
I think you can get a good job after MSc. Is it नेक्स्ट वन क्या है? फूड प्रोसेसिंग फर्म्स, पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, प्लास्टिकल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो भी ये इंडस्ट्रीज़ हैं इसमें जो MSc केमिस्ट्री के जो बच्चे होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा क्या होता है कि वो लोग हाँ मांगते हैं CSI नेट क्वालिफाई हो, गेट क्वालिफाई हो, लेकिन प्राइवेट में ये चीज़ ऑप्शनल होती है, नहीं मांगा जाता नेट क्वालिफाई। और बाकी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यही है कि आप नेट क्वालिफाई कर दें तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, नेक्स्ट वन है एनवायरमेंट लॉ, पेशेंट लॉ, फिल्म, स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट में भी MSc केमिस्ट्री के बच्चों को के लिए वैकेंसी होती हैं। पेपर इंडस्ट्री, सेरामिक्स इंडस्ट्रीज, मिलिट्री सिस्टम डिपार्टमेंट। तो ये हैं ये वो हैं जो कि रिसर्च आफ्टर MSc और आफ्टर नेट क्वालिफाई और आफ्टर गेट आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये है कि तब तक अगर हमें अभी तो कोविड-19 चल रहा है और इसके कारण जॉब मिलना बहुत ही हार्ड हो गया है, और नेट क्वालिफाई करना उससे भी हार्ड है। ना तो बच्चे कोचिंग ले पा रहे हो, और मुझे नहीं लग रहा कि अभी दिसंबर तक कुछ ओपन होगा कोचिंग सेंटर वगैरह। वैक्सीन मिल गई है, लेकिन वैक्सीन को सप्लाई करने में पूरे वर्ल्ड टाइम लगता है। बट आप अपनी जो स्टडी है उस पर कंसंट्रेट करते रहो, अपनी स्टडी को आपको लेट डाउन नहीं करना है। और नेक्स्ट वन ये है कि ये तो आपको बता दिया कि आपके पास ऑप्शनल है, ठीक है, मतलब आफ्टर MSc। अब जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और जिनका स्कोर हमेशा अच्छा रहा है, जिनकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर है, चाहे वो कंसेप्ट आपके +1 +2 के क्लियर हो, ये मैटर नहीं करता कि आपके कौन से क्लियर हैं। अगर आपके +1 +2 के क्लियर हैं या फिर आपका BSc का सिलेबस क्लियर है, तो आप लोग घर पे ही बैठकर अपना एक YouTube चैनल खोल सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखें कि आपके वे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप किसी भी बच्चे को गलत शिक्षा या गलत नहीं देनी चाहिए आपको। जो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप उसकी वीडियो ही ना बनाएं कि बच्चा गलत। और भी बच्चे हैं, जैसे अगर हम 12th को पढ़ाएंगे, अगर हम उनके लिए एक अच्छी वीडियो नहीं बना पा रहे तो हमें नहीं बनानी चाहिए। तो मैं उन्हीं को बोल रही हूँ जिनके कंसेप्ट क्लियर है तो वो पढ़ा सकते हैं। कुछ बच्चे ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा सकते हैं, मैं तो प्रेफर करती हूँ ऐसे ही पढ़ाना, क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि हम ब्लैक बोर्ड पर ही पढ़ाएं, तभी हम पढ़ा सकते हैं। किसी की मेरे को तो यही लग रहा है कि आप लोग अभी फ़िलहाल घर पे हैं, तो अपने जो कज़न्स हैं या फिर आपसे जो छोटे हैं, आपके बहन भाई हैं जो आपके, और जो भी आपके सिबलिंग्स हैं, और आपके जो भी नेबर्स में जो बच्चे हैं जो +1 +2 में हैं या फिर BSc में हैं, आप लोग उनकी हेल्प कर सकते हो। ठीक है, उनकी हेल्प करने से आपको क्या होगा, एक तो आपके कंसेप्ट और भी ज़्यादा अच्छे क्लियर होंगे, और उनकी हेल्प दिस वन कि वो अगर आपको एज ए ट्यूटर अगर आपको पूछते हैं कि आप हमारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दो, तो आप पढ़ा सकते हो। क्योंकि अब जब तक आपके पास कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं आती तो आपको ऐसे ही जाना कोई वो तो है नहीं। और अगर आप अपनी नॉलेज किसी के साथ शेयर करते हो तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको फ्री में शेयर कर रहे हो या आपको उसके पैसे मिल रहे हैं। पैसे तो देखो सबको चाहिए होते हैं, और जो फ्री में नॉलेज है वो ये है कि आप अगर दे भी पा रहे हो, किसी के पास नहीं है बजट, फ्री में देने से कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उससे आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। और जो पैसे अफोर्ड कर सकते हैं उनसे अगर आप पैसे ले रहे हो तो ये आप पढ़ा रहे हो तभी ले रहे हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना एज ए ट्यूटर पढ़ा सकते हो। यूट्यूब चैनल मैं इसलिए रिकमेंड करती हूँ आपको, क्योंकि यूट्यूब चैनल है अगर आपका, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी भी एकेडमी, जैसे कि ऑनलाइन ऐप है, अन अकेडमी ऐप है, या फिर अदर है, वेदांतु है, इन पे एज ए ट्यूटर फिर आपको मेल आता है, वो एज ए ट्यूटर आपको हायर कर लेते हैं। तो उसमें भी एक अच्छी खासी सैलरी है, आप एज ए ट्यूटर पढ़ा सकते हो। लेकिन कंसेप्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगी आपको कि आप अभी अपने MSc के कंसेप्ट क्लियर करते रहो, नेट की तैयारी करते रहो, और वीडियो आपको प्रोवाइड करती जाएंगी, मतलब कर दी जाएंगी,
तो आप इस चीज़ की टेंशन ना लेना कि आपको वीडियो नहीं मिलेगी। आपको वीडियो मिलेंगी, आपको वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। अगर कॉस्ट अगर लगेगी तो भी अगर सिर्फ उस चीज़ की लगेगी जो PDF बनाई जाएगी, क्योंकि PDF बनाने में कॉस्ट पेमेंट करनी पड़ती है, तभी हम PDF बना सकते हैं। लाइक कोई ऐप होती है, ऐप पे हमें PDF बनाने के लिए पहले उनको पेमेंट करनी पड़ती है, उसके बाद ही हम PDF, फ्री ऑफ कॉस्ट तो PDF बनती नहीं है, तो उनकी आपको कॉस्ट देनी पड़ सकती है। अदरवाइज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस मिलेंगी और आपको कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए ही वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो। और पहले वाली एक वीडियो पे कमेंट आया था IIT जैम के लिए, तो नेक्स्ट वीडियो है IIT जैम के लिए बनाने की, मैं पूरी ट्राई करूँगी। बुक्स भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी, बताई जाएंगी कौन सी अच्छी IIT जैम के लिए, और सिलेबस भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।